اب میں اس کے بعد فضیلۃ الشیخ مظفر عمری حفظہ اللہ امام و خطیب مسجد قریش ہاؤسنگ بورڈ راج مندری سے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور ہمیں چند کلمات ناصحانہ سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ محترم صدر جلسہ، علماء اکرام، جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران، مدرسہ حاضہ کے معلمین معلمات، طلباء و طالبات و سامعین و سامعات، ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس کی توفیق و عنایت سے الحمدللہ ہم لوگ کچھ علمی باتیں جس کا تعلق رب العالمین کی دین سے تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تھا، ان تعلیمات کو سننے کا موقع ملا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام ہو، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین و سامعات، الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ دیر میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ خصوصیت کے ساتھ خواتین کا کردار تعلیمی میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور سلف صالحین کے زمانے کے اندر کس ناحیے سے تھا، اس کے متعلق چند باتیں سننے کی کوشش کریں۔ صرف اس کی وجہ یہ ہمارے اندر وہ ایمانی چنگ ہم اپنی زندگی کے اندر وہ ایمانی تازگی یاد کر سکے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی صحابیات اور سلف صالحین کے گھرانوں کے اندر تھی۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، جو بھی آدمی نیک عمل کرے گا، مرد ہو کہ عورت، اور وہ ایمان والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں ہم اس کی زندگی بہتر سے بہتر بنا دیں گے، ہر اعتبار سے خوشگوار بنا دیں گے، اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی اور بدلہ دینے کے اعتبار سے بھی۔ محترم حاضرین، قرآن مجید اور احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جا بجا یہ بات بتائی گئی کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں سے خطاب کیا، وہیں عورتوں سے بھی بات یہی تعلیم بتائی گئی۔ جن تعلیمات اوامر و نواہی جہاں حکم دیا گیا، وہاں عورتوں سے بھی یہی خطاب کیا گیا۔ جن تعلیمات میں فرائض اور نوافل کی طرف ابھارا گیا، وہی خواتین سے بھی یہ تعلیم بتائی گئی کہ لوگوں، اے خواتین کی جماعت، تمہیں بھی عمل کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی یہ جماعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئی، آ کے کہنے لگی غلبنا الرجال یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرد حضرات ہیں جو ہم سے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں علمی میدان کے اندر، آپ ہمارے لیے بھی کچھ خاص انتظام کیجیے۔ یہ بات سننا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا، اے خواتین، اے عورتوں کی جماعت، تم ہفتے میں ایک دن مقرر کر لینا، ہفتے میں ایک دن میرے پاس گھرانے میں جمع ہو جانا، اس گھر میں آ کر میں تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات نصیحت کی بات آئی، عیدگاہ کا موقع ہوتا، عیدگاہ میں جہاں مرد حضرات کو یہ خطبہ نصیحت کرتے، وہیں عورتوں کے پاس بھی جاتے، عورتوں سے نصیحت کرتے، دین کی تعلیمات ان کو یاد دلاتے۔
इसी तरह एक मरतबे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की, तसद्दक़ना, ऐ औरतों की जमात, अल्लाह के रास्ते में सदका करो, अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात में आगे बढ़ो। वो उम्महातुल मोमिनीन, उम्मा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की सहाबियात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला सुनना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला सुनने के बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की बीवी थी, प्यारे नबी घर आई, घर आके अपने शोहर से पूछती हैं, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी ये जुमला सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ औरतों की जमात, अल्लाह के रास्ते में सदका करो। तुम जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ के आना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम करके आना, क्या बीवी शोहर को सदका दे सकती है? क्या बीवी ये कहती थी कि मेरा शोहर गरीब है, मुस्तहिक है, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके सवाल करके आना? बीवी को ये जानना था, ये मालूम करना था। हजरत शोहर अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने कहा, वो भी शर्मसार थे, वो भी अपनी जगह ये चीज जानते थे, मैं अल्लाह के नबी के पास जाके बीवी का सवाल कैसे करूं? बीवी से कहा, ऐ मेरी मोहतरमा, तुम ही जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके सवाल करना। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा अपने शोहर का ख्याल करके खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाती हैं। देखती क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास एक औरत पहले से मौजूद है। वो औरत की शिकायत भी वही है, वो औरत भी अपने घर के ही सवाल लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी कि क्या औरत अपने शोहर को सदका दे सकती है क्या? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर से हजरत बिलाल तशरीफ लाते हैं, पूछते हैं, तुम आने की औरतों, दोनों औरतें थी, तुम्हारे आने का क्या मकसद है? वो औरतें कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके कहना, हमारा नाम न बताना, हमारा नाम न बताना, वरना हमारे घराने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान लेंगे। जाके सिर्फ ये पूछना, क्या औरतें अपने शोहर को सदका दे सकती है? क्या बीवी अपने शोहर को सदका दे सकती है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बीवी के हजरत बिलाल अंदर गए, जाके पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाहर दो औरतें आई हुई हैं और उनका सवाल ये है, क्या बीवी शोहर को सदका दे सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन सी औरत है, वो किस घराने से आई हुई है? जब तो हजरत बिलाल को जवाब देना ही था, वो ज़ैनब है। फिर आपने पूछा, अरे बिलाल, मदीने में बहुत सारा ज़ैनब के नाम की औरतें थी, ये ज़ैनब नाम की कौन सी औरत ज़ैनब है? अय्यु ज़ैनब, ये ज़ैनबों में कौन सी ज़ैनब आई हुई है? बिलाल कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला इब्न मसऊद की बीवी आई हुई है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उन दोनों औरतों से कहना, अपने शोहर को सदका दो, तुम्हें दुगना सवाब दिया जाएगा, डबल अजर दिया जाएगा। एक सवाब सदका करने का और एक सवाब अपने रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार को सदका करने का। गर्ज तालीमी मैदान की जब बात आती है, माँ उम्महातुल मोमिनीन, सहाबियात, सलफ़े सालिहीन, मिसाली औरत, मिसाली बीवी, मिसाली बेटी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद शहीदी बेटी हजरत फातिमा सिद्दीक़ा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत फातिमा, वो फातिमा जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बज़अतुम मिन्नी, लोगों ये फातिमा मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। युरीबुनी मा अराबहा व युज़ीनी मा आज़ाहा, जिस आदमी ने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई, गोया उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने फातिमा को नुकसान दिया, गोया उसने मुझे नुकसान पहुंचाया। वो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, जहां मसला दुनियावी चीज़ों का होता, इल्मी मैदान में इल्मी नुक्ते नज़र से होता, वही फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा एक मरतबे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं, आके कहती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चल चुका था कि आपके पास माले गनीमत में कुछ गुलाम आए हुए हैं, माले गनीमत में कुछ गुलाम आए हुए हैं। वो फातिमा घर में काम करते करते हाथों में चक्की पीसते पीसते हाथों में छल्ले आ चुके होते हैं, तकलीफ हद से ज्यादा हो चुकी होती है। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहती हैं, अय अब्बू जान, मेरे काम करते करते घर में थक चुकी हूँ, हाथों में तकलीफ हो चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है कुछ गुलाम तुम्हारे पास आए हुए हैं, वो गुलाम मेरे हवाले कर दो ताकि मेरे काम में कुछ हाथ बटाए, कुछ काम आ जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ बेटी, तुम मेरे पास यकीनन चहीती हो, लेकिन बात याद रखना, बात याद रखना, ये गुलाम तुमसे ज्यादा, ये सुफा के चबूतरे पे जो इल्म हासिल कर रहे हैं, तुमसे ज्यादा मुस्तहिक सहाबा हैं, तुमसे ज्यादा गरीब हैं, ये गुलाम उनके ज्यादा मुस्तहिक है, मैं तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तालीमी नुस्खा बयान किया, बड़ा प्यारी तालीमात है। शोहर के नाहिए से बीवी को कैसी तालीमात, बेटी होने के नाहिए से बाप कैसी तालीमात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बयान करता हूँ, जब तुम
आराम करने के लिए इस बिस्तर पे जाओगी, सुबह से शाम तक की सारी तालीमात एक जगह, लेकिन जैसे ही बिस्तर पे जाओगी सोने से पहले 30 पर 3 मरतबे सुबहान अल्लाह, 30 पर 3 मरतबे अल्हम्दुलिल्लाह, 30 पर 3 मरतबे अल्लाहु अकबर, ये अज़कार पढ़ लेना, ये अज़कार की पाबंदी कर लेना। ये तुम्हारे सुबह से शाम तक की थकान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दूर हो जाएगी। मुहतरम हाज़रीन, अहले इल्म ने एक नुक्ता बयान किया है, आज हमारी ज़िंदगी के अंदर इंसान थकान की वजह से कई दवाइयाँ इस्तेमाल करता है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात अपने पसे पुष्ट डाल चुके हैं कि लोगों अपनी ज़िंदगी में वो दवाइयाँ इस्तेमाल करो जो दवाइयाँ हमारी ज़िंदगी के ईमान में भी ताजगी बख्शेंगी और वो दवाइयाँ हमें जिस्मानी एतबार से भी सेहत अता करेंगी। ये वो दवाइयाँ हैं। हर आदमी अपने सोने से पहले मसनून तालीमात में से तालीम बयान की, आदमी इस जज्बे के साथ ये समझ कर मेरी थकान सिर्फ जिस्मानी भी हो, आदमी की जहनी परेशानियां भी हो, हर चीज के लिए दवा बताई गई कि लोगों इसका एहतिमाम करो, ये जिसके जरिए इंशाअल्लाह ये चीज दूर हो सकेगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद सलफ सालिहीन औरतों के अंदर खवातीन की जब बात आती है, सईद इब्न मुसय्यब रहिमहुल्लाह या ऐसे थे उस्ताद थे, उनके शागिर्द, एक लंबा वाक़िया है, कई दिनों से गैर हाजिर थे जिनका नाम था कसीर इब्न अबी वदा। कई दिनों से हाजिर नहीं हो रहे थे। पूछा कि कसीर इब्न अबी वदा क्यों नहीं आ रहे हैं? बताया गया कि उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका है। सईद बिन मुसय्यब रहिमहुल्लाह अपनी बेटी का निकाह उनसे कर रहे हैं, अपनी बेटी का निकाह उनसे कर दिए। कर देने के बाद हुआ क्या, कसीर इब्न वदा रहिमहुल्लाह शादी होने के बाद इल्म हासिल करने के लिए दोबारा अपने उस्ताद की मजलिस में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बीवी जो सईद इब्न मुसय्यब रहिमहुल्लाह की बेटी थी, कसीर इब्न वदा अपने शोहर से पूछती है, ऐ मेरे शोहर कहाँ जा रहे हो? बीवी से शोहर कहते हैं, कसीर इब्न वदा मैं तुम्हारे अब्बू के पास इल्म हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। बेटी जो सईद इब्न मुसय्यब रहिमहुल्लाह की बेटी थी, कसीर इब्न वदा की बीवी बन चुकी थी, कहती है ताल इजलिस उअल्लिमुका इल्म सईद, ऐ मेरे शोहर आओ मेरे पास बैठो, आओ मेरे पास बैठ जाओ, मेरे अब्बा के पास जाके जो इल्म तुम हासिल किया करते थे वो इल्म मैं तुम्हें अपने घर के अंदर सिखाऊंगी। ये कैसी चीज थी, ये कैसा इल्म था? बेटियों को वो इल्म हासिल हो चुका, बीवियों को इल्म हासिल हो चुका। आपको वो भी इल्म पता होगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की किताबों में सही बुखारी जिसके बारे में बात बताई जाती है, असहुल किताब इबादा किताबिल्लाह, इस रूए जमीन पे कुरान मजीद के बाद सबसे ज्यादा सही किताब अगर कोई किताब है वो सही बुखारी शरीफ। सही बुखारी की कई लोगों ने शरह लिखी है, कई लोगों ने उसकी और वजाहत के साथ बयान किया है। उन शुरुआत में कई एतबार से मुअज़्ज़ज़ शरह मानी जाने वाली शरह इमाम इब्न हजर रहिमहुल्लाह की फतहुल बारी है। ये इमाम इब्न हजर रहिमहुल्लाह अपनी जिंदगी का वाक़या बयान फरमाते हैं, लोगों मेरी जिंदगी के हालात में से ये चीज थी, मेरी वालिदा का इंतकाल मेरे बचपन में हो चुका था, मेरी वालिदा का इंतकाल मेरी बचपन में हो चुका था। जो तरबियत मेरी माँ मुझे करना चाहिए था, कैसी तरबियत मेरी माँ के जरिए होना चाहिए था, खुद इमाम इब्न हजर रहिमहुल्लाह कहा करते थे, वही उम्मी बादा उम्मी, मेरी बहन ने मेरी माँ की तरबियत की तरह मेरी तरबियत की। इमाम इब्न हजर रहिमहुल्लाह की जो तरबियत की गई वो उनकी बहन के नाहिये से हो, बीवी के नाहिये से हो, बेटी के नाहिये से हो, इस्लामी तालीमात का एक लंबा ज़ख़ीरा है। बात बताना मकसूद क्या है, आज इल्मी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह जो तालिबात और तलबा का जो हमने इल्मी मुज़ाहरा सुना, सिर्फ इस नाहिये से कि उनको स्कूल की तालीम भी दी जा रही है, दीनी एतबार से भी उनको संभाला जा रहा है, ज़बानी एतबार से भी उनको उभारा जा रहा है, तेलुगु ज़बान में, अंग्रेज़ी ज़बान में, और स्कूल के एतबार से उस एतबार से उसमें कामयाबी की तरफ गर्ज हर तरह की कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी ये दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इनको इसी नाहिये से हर एतबार से हर मरहले को समझ कर हर मरहले में आगे बढ़ते रहने की तौफीक अता फरमा। मोहतरम हाज़िरीन, बात जो चीज़ बतानी है तालीमी एतबार से ख़वातीन का किरदार, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अंदर जो हमने कई मरतबा अभी सुनी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही जो इक़रा, उस वही के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तालीम नाजिल बयान किया, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इल्म हासिल करने की तालीम दी। वहाँ सिर्फ मर्दों से खिताब नहीं किया गया, अल्लमर रिजाल नहीं कहा गया, वहाँ ये आम रखा गया, अय मर्दों की जमात, अय औरतों की जमात, अय इंसानों की जमात, अय इंसानों तुम में से हर एक को इल्म हासिल करना है, हर एक को इल्मी मैदान में आगे बढ़ना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इल्म की बात आई, इल्म की बात हासिल, इल्म हासिल करने की बात आई, आज़ाद तो आज़ाद,
وہ लौंडियाँ, वो गुलाम जिनका माशरे में कोई हैसियत नहीं थी, बाजार में इंसानों चीज़ों की तरह बेचे जाते थे गुलाम और लौंडियाँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन लहुम अजरान, डबल सवाब दिया जाएगा, दुगना अजर दिया जाएगा। किस आदमी के लिए? वरजुलुन कानत इंदहु अमतुन यतउहा फअल्लमहा फअहसन तालीमहा फअद्दबहा फअहसन तादीबहा सुम्मा आतक़हा फतज़व्वजहा फलहु अजरान। लोगों, जिस आदमी के पास लौंडी हो, जिस आदमी के पास लौंडी हो, वो उस लौंडी को अपनी बीवी की तरह इस्तेमाल कर रहा हो, अपनी बीवी की तरह उसे अपने जिंदगी गुजर बसर कर रहा हो, और उस लौंडी को अच्छी तरह इल्म सिखा रहा हो, बेहतर इल्म दिया हो और अदब भी दिया हो, बेहतर अदब दिया हो, फिर उसे आज़ाद कर दिया, फिर उससे निकाह भी कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे आदमी को दुगना सवाब दिया जाएगा, डबल अजर दिया जाएगा। गर्ज बात बताना मकसूद क्या है? आज़ाद हो, गुलाम हो, लौंडी हो, माँ हो, बीवी हो, बेटी हो, अब घराने के अंदर जिस नाहिए से भी हो, इल्मी मरहले के अंदर, इल्मी मैदान में खुद इतने आगे बढ़े, इतना गहराई से इल्म हासिल करे कि लोगों जिस माहौल के अंदर रब्बुल आलमीन की मारिफत हासिल न कर सके, रब्बुल आलमीन को पहचान न सके, वो माशरा कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। हमने तौहीद के बारे में अभी बच्चियों की ज़बानी कई तकलीमात सुने। तौहीद के वो पैगामात जो हर घर में गूंजने चाहिए, हमारे इलाके में गूंजने चाहिए, हमारे माहौल में पहुंचना चाहिए। ऐसी तालीमात हम बचपन से याद करते रहे, बच्चों को याद दिलाते रहे, बड़े भी इसका एहतिमाम करें। एक अरबी शायर बड़ा प्यारा जुमला कहता है, इदा काना रब्बुल बैति ज़ारिबन अला तबल, जब घर का जिम्मेदार, इदा काना रब्बुल बैति ज़ारिबन अला तबल फला तलूमुल औलाद अला रक्स, जब घर के जिम्मेदार हजरात, घर के बड़े हजरात घर के अंदर बैठ के तबल बजा रहे हो, घर के अंदर बैठ के मौसीकियों का काम कर रहे हो, वो अपनी औलाद जब डांस कर रही हो, अपनी औलाद नाच गाने में जा रही हो, वो अपनी औलाद को मलामत करने के हकदार नहीं है। क्यों? घर के माँ बाप गलत रास्ते पर हो, वो अपनी औलाद से नेक उम्मीद रखना ये नामुमकिन चीज है। हम लोगों को ये तालीम भी बताई जा रही है कि लोगों अपनी जिंदगी में पहले अपने आप से इस्लाह, बच्चों की इस्लाह चाहते हैं, बच्चों की इस्लाह से पहले अपनी जिंदगी की इस्लाह। हम जितने अच्छे बन जाएंगे यकीनन हमारी औलाद उतनी अच्छी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हो सकेगी। साथ ही साथ एक दूसरा पैगाम, दुआओं का एहतिमाम। ये सारी कोशिश एक तरफ, सारी काविशें एक तरफ, दुआओं का ये सहारा हमारी जिंदगी में कभी न छोड़ना चाहिए। काम करने से पहले भी दुआ, काम करते हुए भी दुआ, और काम के इख्तिताम खत्म होने के बाद भी जब तक जिंदगी बाकी रही दुआ। अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब दुआएं करते थे, सिर्फ औलाद की दुआ नहीं, नेक औलाद की दुआएं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। सिर्फ औलाद की दुआ नहीं, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का बड़ा प्यारा वाक़या कुरान में नकल किया गया है दुआ के सिलसिले में। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, मरियम से पूछा, ऐ मरियम क्या बात है, तुम्हारे पास बेमौसम फल पाए जा रहे हैं, ऐसे फल देख रहा हूं जो मौसम इस मौसम में नजर नहीं आते, मिला नहीं करते। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे खालू जान, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में मरियम के खालू लगते थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम से मरियम कहने लगी, ऐ मेरे खालू जान, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुझे अता की जा रही हैं। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम सोचने लगे, बेमौसम फल देने वाला वो रब्बुल आलमीन, उस वक्त उनको भी औलाद नहीं थी। अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में बड़ा प्यारा नक्शा खींचा, रब्बी इन्नी वहन الأزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل याकूब। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे सर के बाल सफेद हो चुके हैं, ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुआ करने से मायूस नहीं हूँ, मेरी बीवी बांझ है, मेरी बीवी बुढ़ापे के मरहले में पहुंच चुकी है, ऐ अल्लाह मैं तुझसे एक ऐसी औलाद मांग रहा हूँ, ऐसी औलाद की दुआ कर रहा हूँ। दुआ मांगना हो तो भी ऐसी दुआ करनी चाहिए, यरीसुनी व यरीसु मिन आली याकूब, ऐ अल्लाह एक ऐसी औलाद मुझे अता फरमा जो औलाद मेरी भी विरासत की जिम्मेदारी, नबुव्वत का सिलसिला बाकी रखे और याकूब अलैहिस्सलाम की नबुव्वत जिंदगी की विरासत को भी बाकी रखे। गर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ताला ने उनको यहिया अलैहिस्सलाम की शक्ल में नबी जैसा औलाद अता की।
गर्ज बात बताना मकसूद क्या है, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कोशिशें भी करना, इल्मी मैदान में भी आगे बढ़ना, दुआओं का सहारा भी लेके चलना, ये सारी चीज़ें जब अपनी ज़िंदगी में देखते रहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर मरहले के अंदर आजमाता रहेगा। ये इस मरहले में कामयाबी हो रहे कामयाब देख रहे हैं या नहीं, इस मरहले में सबात कदमी बता रहे हैं या नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है हमारा अंजाम, हमारा इख्तिताम। लेकिन इस मरहले में हम कामयाब होने के लिए सबात कदमी, साबित कदमी, जमे रहना, डटे रहना, अल्लाह ताला से दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो यहाँ जमा हुए बच्चों का जो इल्मी मुज़ाहरा सुने, जिम्मेदार हजरात की कोशिश, आप सभी लोगों का यहाँ जमा होना, हम सभी लोगों का, हमारे असातिज़ा, हमारे बड़े लोग, हमारे बहुत सारे उलमा इकराम की जो चीज़ें हमने सुनी, अपनी इल्मी ज़िंदगी की इल्मी ताज़गी बख्शी। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर एतबार से जहाँ भी रहे इल्मी मैदान में इस्लामी तालीमात जिस नाहिए से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, वो सही तालीमात को पढ़ने, सुनने, समझने और जिन तालीमात पे जिस तरह ईमान लाना है उन तालीमात पे कमा हक़्क़हु ईमान लाने की तौफीक अता फरमा, और जिन तालीमात का तकाजा अमली ज़िंदगी में इख्तियार करने से है उन तालीमात को इखलास व लिल्लाहियत के साथ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर हर काम सुन्नत रसूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करने और अमल करते रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।